Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 37th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, uh, we try to learn or try to understand about the various things about the IC diagrams, right? So we try to learn the basics about the ion carbon diagram, ion carbon carbon diagrams, right? The basic how at the which temperatures and the which kind of the structures are forms during the IC diagrams with the effect of the percentage of the carbons and the different temperature series during the heating and cooling. We also learns about the various type of the structures like the austenite, martensites, ladyburites, right, pearlite, ferrites, cementites. What are the structures and what are the characteristics of that structures, and what kind of the steels and what kind of the cast irons are developed during this structure range. At the last of the previous lecture, we try to understand about the basic things about the uh, reactions which is forms during the IC diagram, right? There are the three reactions which is formed during the IC diagram, which is the peritectic reacted, eutectic reactoids, and the eutectoid reactions. There are the basically the three reactions are formed in the IC diagrams, and we also try to discuss the basic things about that reactions which is forms and how that reactions are affects during the IC diagrams. So in today's lecture, we try to learn the basic things about the topic of our today's lecture, which is the constituents, microstructures, and the basic properties of the carbon steel. सॉरी दी प्लेन कार्बन स्टील. आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमें आज पढ़नी है वो है द बेसिक थिंग्स अबाउट द प्लेन कार्बन स्टील, राइट. हम लोग अब आईसी डायग्राम स्टडी करने के बाद अब जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग लास्ट इसको ख़त्म करने के मोड पे जब हम लोग जा रहे हैं, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ द कार्बन स्टील, राइट, विच इज़ द प्लेन कार्बन स्टील. तो बेसिकली प्लेन कार्बन स्टील कैसे डेवलप्ड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, उसके क्या माइक्रोस्ट्रक्चर्स रहते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट्स रहता है, वो चीज़ जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे. द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील विच इज़ द आयन एंड कार्बन, जो हमने कल पढ़ा था, इससे जो है वो प्लेन कार्बन स्टील जो है वो डेवलप्ड होता है. जो प्लेन कार्बन स्टील के अंदर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस है विच इज़ द आयन एंड कार्बन. द प्लेन कार्बन स्टील इज़ अ टाइप ऑफ स्टील विच इज़ हैविंग अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज़ द 1.5%. प्लेन कार्बन स्टील के अंदर तो जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है विच इज़ द 1.5%, अलोंग विद द स्मॉल परसेंटेज ऑफ, इसके साथ स्मॉल परसेंटेजेस के अंदर जो है वो सिलिका, सल्फर, फॉस्फरस, मैंगनीज, ऐसे जो है वो एलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं. सो दे आर और दे कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली only if the application does not have the more strength and other engineering application. जो ये जो प्लेन कार्बन स्टील है वो हम लोग सक्सेसफुली किसी भी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसी कंडीशंस के अंदर, तब वो जो एप्लीकेशंस है उसमें एक तरीके का ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होना नहीं चाहिए, तब जो है हम ये प्लेन कार्बन स्टील जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो द प्लेन कार्बन स्टील्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज विच इज़ द लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील. ये जो प्लेन कार्बन स्टील जो है वो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन, they are classified into the three categories which is the plain carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel. So we will discuss all these three categories with the details. So first we starts with the low carbon steel. अब low carbon steel जो है वो किसे बोला जाता है, the containing carbon up to the 0.25%, जिसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज है वो मैक्सिमम 0.25% तक कार्बन है, विच इज़ रिस्पॉन्स टू द हीट ट्रीटमेंट्स एज अ इम्प्रूवमेंट
in the ductility is concerns, but there is no effect in respect of its strength and properties. बेसिकली ऐसा कार्बन स्टील जिसके अंदर द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज़ अप टू 0.25% तक जिसके अंदर कार्बन है, और उसके ऊपर अगर हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर उसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से उस पर हीट ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिससे उसकी डक्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। बाकी किसी प्रॉपर्टीज़ यानी स्ट्रेंथ वगैरह में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। दे आर नॉट इम्प्रूव्ड इन द टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रॉपर्टीज बाय द हीट ट्रीटमेंट्स ड्यू टू द लैक परसेंटेज ऑफ द कार्बन। इसके ऊपर हम लोग हीट ट्रीटमेंट करें तो इसके अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन काफ़ी कम है ना, इसीलिए इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट की इफेक्ट से जो है वो स्ट्रेंथ और हार्डनेस के अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील्स आर कंसिस्ट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ द फेराइट एंड लेस अमाउंट ऑफ द परलाइट। अगर हम लोग माइक्रोस्ट्रक्चर की बात करें तो इसके माइक्रोस्ट्रक्चर जो रहता है उसमें आपको जो है वो मोर अमाउंट ऑफ द फेराइट यानी वाइट बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, और लेस अमाउंट ऑफ द परलाइट, राइट, द प्रेजेंस ऑफ द परलाइट विच इज़ शोन विच इज़ वेरी लेस। दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक बट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डक्टिलिटीज एंड द टफनेस। ये जो है बेसिकली काफ़ी सॉफ्ट एंड वीक काइंड ऑफ द स्टील्स होते हैं, बट इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत एक्सेलेंट जो है वो डक्टिलिटीज़ और उसके अंदर टफनेस होते हैं। अगर ये जो है इसका माइक्रोस्ट्रक्चर यानी आप जो है वो कार्बन फ्लैक्स यानी आपको प्रेजेंस ऑफ कार्बन जो है वो फ्लैक्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है, राइट। ये जो है वो एक तरीके से लो कार्बन स्टील जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर दी स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ द स्टील इंडेक्स, इस कैटेगरी का जो एक स्टील है उस स्टील का जो है वो माइक्रोस्ट्रक्चर, लो कार्बन स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर जो आपके पास दिख रहा है, यानी इस माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंस ऑफ जो है वो फेरेट आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। उस प्रेजेंस जो है फेरेट की प्रेजेंस जो है उसके साथ जो है वो आपको ब्लैक जो है वो द प्रेजेंस ऑफ द परलाइट जो है वो भी आपको साथ में दिख रही है। ना व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द लो कार्बन स्टील? लो कार्बन स्टील जो है वो उसका बेसिकली एप्लीकेशंस जो है वो क्या एप्लीकेशंस रह सकता है? तो अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो लो कार्बन स्टील्स आर suitable for the automobiles, refrigerator bodies, cans, right, the corrugated steels, sheets, then the structural shapes etc. इस चीज़ के लिए जो है वो लो कार्बन स्टील जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो यूज़ किया जा सकता है। द लो कार्बन स्टील्स आर suitable for the automobiles, refrigerator bodies, cans, corrugated sheets, structural shapes एक्सेट्रा। इसके लिए बेसिकली ज़्यादा जो है वो लो कार्बन स्टील का यूज़ होता है। नाउ देयर एप्लीकेशंस आर आल्सो इंक्लूडेड एज अ नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, बॉयलर की प्लेट्स, राइट, शिप की प्लेट्स जिसके अंदर थिकनेस काफ़ी कम होता है, एंड द रेफ्रिजरेशन बार एंड द पाइपलाइंस आर वेरी मच विथ यूजफुल्स विद द लो कार्बन स्टील। ये जो है इसके अतिरिक्त जो है इसकी एप्लीकेशंस होती है। यहाँ पे जो है वो आपके सामने लो कार्बन स्टील के जो है वो फैंस, बॉयलर के अंदर जो फिन्स यूज़ होती है वो फिन्स जो है वो आपको दिख रही है। देन द स्टील वायर्स जो है वो भी लो कार्बन स्टील से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं। देन द स्टील के नट्स जो है वो आपके सामने दिख रहे हैं, वो नट्स जो है वो लो कार्बन स्टील से यूज़ किए जा सकते हैं। देन the second applications or the second kind of the plain carbon steel which is the medium carbon steel। अब medium carbon steel जो है वो किस तरीके से एक अलग कार्बन स्टील है, तो जिस कार्बन स्टील के अंदर द मीडियम कार्बन स्टील विच इज़ कंटेंट एज ए 0.3 to 0.6% ऑफ कार्बन, जिस कार्बन स्टील के अंदर 0.3 to 0.6% तक कार्बन है, उस कार्बन को जो है वो मीडियम कार्बन स्टील से जो है वो जाना जा सकता है। जिस कार्बन स्टील के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 0.3 to 0.6% तक है, उसको मीडियम कार्बन स्टील से पहचाना जा सकता है। द एग्जिबिट्स ए बेटर रिस्पॉन्स टू द हीट ट्रीटमेंट कंपेयर टू द लो कार्बन स्टील। ये जो है वो लो कार्बन स्टील से काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान जो है उसको
रिएक्ट करता है. Their mechanical properties can be improved by hardening which is followed by the tempering heat treatment process. इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे स्ट्रेंथ हो गई, हार्डनेस हो गई, राइट, डक्टिलिटी हो गई, टफनेस हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं, वो सारी प्रोसेसेस से जो है वो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इस ये जो सारी हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जो बात की, उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज़ करके इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग द एलोइंग एलिमेंट्स. जैसे ही हम लोग इसके अंदर जो है वो एलोइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, राइट, देयर स्टेबिलिटी टू गेट द हार्डन्स, राइट, कैन बी इंक्रीज. जैसे ही हम लोग इसके अंदर एलोइंग एलिमेंट्स जैसे ऐड करते हैं तो वैसे ही इसकी एबिलिटी जो उसको हार्डन बनाती है वो जो है वो एक तरीके से इम्प्रूव होती है, वो एक तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव होती है. So this is the microstructures of the medium carbon steel. You can see that here the presence of the perlite which is very much strong. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो फेराइट यानी वाइट जो है वो बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है विच इज़ एज कम्पेयर टू द लो कार्बन स्टील, राइट. यहाँ पे जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट, विच इज़ दी 0.3 to 0.6% तक. तो उसकी जो प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ द परलाइट वो जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो आपको दिख रही है. सो दिस इज द माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ द मीडियम कार्बन स्टील. सो नाउ we will move forwards to the applications of the medium carbon steel. Now what is the applications of the medium carbon steel? Some typical applications of the medium carbon steel which is includes such as we can manufacturing the gears, axles, levers, cams, bolts, sockets, screwdrivers, auger beads, cylindrical liners, cylinders, hand tools, rims of the bicycles, automobile wheels, railway car wheels, and the tracks, railway couplings, rifles के जो barrels होते हैं वो, balls of the ball boring mills and the machines components are manufactured with the मीडियम कार्बन स्टील. इससे जो है वो काफ़ी सारे ये जो पार्ट्स अभी जो मैंने बोले वो सारे पार्ट्स जो है वो मीडियम कार्बन स्टील से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं. सो दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द मीडियम कार्बन स्टील. सो these are the some kind of the figures. These are the some kind of the figures of the medium carbon steels, which is these are the some kind of the product which is manufactured from the मीडियम कार्बन स्टील. ये जो है वो आपको सामने आपके स्क्रीन के ऊपर उसके एप्लीकेशंस के जो फिगर्स है वो फिगर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो द फर्स्ट विच इज़ दी बॉल फॉर दी बॉल मिल्स, जो है वो बॉल मिल्स जो बॉल्स बनाए गए हैं वो. देन द सेकेंड विच इज़ द एक्सेल्स विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जो हम लोग एक्सेल्स बनाते हैं वो काफ़ी सारे एक्सेल्स जो है वो भी मीडियम कार्बन स्टील से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं. देन द रिम ऑफ द बाइसिकल्स, जो बाइसिकल्स की जो रिम्स होते हैं वो भी मीडियम कार्बन स्टील से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं. सो दिस आर द एप्लीकेशंस, these are the applications of the medium carbon steel. So now this is the third category of the plain carbon steel which is the high carbon steel. अब किस चीज़ को जो है वो high carbon steel जो है वो बोला जा सकता है? When the high carbon steel which is contain the carbon from 0.6% to the 2%, जिस कार्बन स्टील के अंदर पर the percentage of the carbon which is between the 0.6% to up to the 2%, जिसमें कार्बन परसेंटेज रहेंगे उसको जो है वो प्लेन कार्बन स्टील का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी वाला हाई कार्बन स्टील जो है उससे पहचाना जा सकता है. द हाई कार्बन स्टील विच इज कंटेन द कार्बन फ्रॉम 0.6% to the up to the 2%. They are hardest and the strongest among the plain carbon steel but which is the least ductile. ये जो है वो
प्लेन कार्बन स्टील की कैटेगरी का जो है वो सबसे हार्डेस्ट काइंड ऑफ द स्टील माना जा सकता है। बट यहाँ पे उसका एक लिमिटेशंस यहाँ पे जो है आपके सामने निकल के आएगा, विच इज़ दी लेस डक्टाइल। वो जो है वो एक तरीके से काफ़ी जो है वो डक्टाइल होता है, राइट। वो एक तरीके से काफ़ी तरह से जो है वो ज़्यादा जो है वो लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट। वो जो है वो ज़्यादा जो है वो लोड नहीं सस्टेन कर पाएगा। और यहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्गर होने के पीछे जो है वो आप इसका एक रिलेशनशिप मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। एक तरीके से आप अगर सोचेंगे तो जैसे जैसे इसके अंदर कार्बन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते हैं, राइट, तो वो जो है वो परसेंटेज ऑफ द कार्बन जो है वो एक तरीके से डायरेक्टली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो उसकी हार्डनेस है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप में है, राइट। जैसे वो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही ये प्लेन कार्बन स्टील की कैटेगरीज में जो है उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। दे हैव द पुअर फॉर्मेबिलिटी। इसको जो है वो आप इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। डिफरेंट फॉर्म में अगर आपको शेप करना है तो उसके अंदर आप उसको डिफरेंट फॉर्म में शेप नहीं कर सकते। इसके पास बहुत पुअर फॉर्मेबिलिटीज़ होती है, मशीनबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वेल्डेबिलिटीज़ जो है वो इतनी सारी अच्छी नहीं होती है, इतनी हम लोग जैसे बेस्ट वेल्डेबिलिटीज़ बोल सकते हैं, बेस्ट मशीनबिलिटीज़ बोल सकते हैं, वो जो है उसको नहीं बोल सकते। बट उसकी हार्डनेबिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दी मीडियम कार्बन स्टील, एज़ कंपेयर टू दी मीडियम कार्बन स्टील। यहाँ पे दो चीज़ निकल के सामने आ रही है। जैसे उसके पास कंपेयर टू मीडियम कार्बन स्टील के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसकी जो है वो फॉर्मेबिलिटी, जिससे उसको डिफरेंट शेप में फॉर्म कर सकते हैं, वो machinabilities and the buildabilities are poor as compared to the medium carbon steel. But as we compare its hardenabilities, sorry, which is quite good as compared to the medium carbon steel. The alloying elements such as a tungsten, molybdenums, chromiums, vanadiums can be added into the these steels. जैसे इसकी ये जो लिमिटेशंस है, मशीनबिलिटीज़ की है, वेल्डेबिलिटीज़ की है, फॉर्मेलिटीज़ को इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर जो है दो एलोइंग एलिमेंट्स जो है वो हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही एलोइंग एलिमेंट जैसे कि टंगस्टन हो गया आपका, मोलिब्लेडियम हो गया आपका, क्रोमियम हो गया आपका, वेनेडियम हो गया, वो जैसे हम लोग ऐड करेंगे स्टील्स के अंदर, तो वो जो है इस स्टील को विच इज़ फॉर्म एज अ हार्डर एंड द वियर रेजिस्टेंस एंड दे आर फॉर्म्स द कार्बाइड कंपाउंड्स। ये जो है इसके अंदर कार्बाइड कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म्स करते हैं। इससे इसकी वियर और हार्डनेबिलिटीज़ जो है वो रेजिस्टिबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होती है। सच एज ए हाई कार्बन स्टील्स विद द कार्बाइड्स कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्स और कैन बी यूज्ड तो मेकिंग ऑफ द टूल्स एंड डाई। इसकी मदद से जो है अगर हम लोग इसके अंदर एलोइंग एलिमेंट्स ऐड कर दें तो उसके बाद इसकी मदद से जो है हम लोग काफ़ी तरह के जो है वो टूल्स, डाइज वगैरह जो है वो जो प्रेस के अंदर जो यूज़ होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ दी हाई कार्बन स्टील। ये जो है वो आपके सामने इसका माइक्रोस्ट्रक्चर, यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपको दिखेगा कि माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर जो है द प्रेजेंस ऑफ दी कार्बन जो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट, क्योंकि इसमें द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कार्बन जो है इसके अंदर अवेलेबल है। इसके लिए उसका माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आपको ऑब्जर्व हो रही है। सो हमने तीनों चीज़ के माइक्रोस्ट्रक्चर्स अभी ऑब्जर्व किए। नाउ द end point of this lectures which is about the applications of the high carbon steel. हाई कार्बन स्टील जो है इसका एप्लीकेशंस जो है वो क्या हो सकता है, राइट, किस चीज़ के अंदर जो है वो हाई कार्बन स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा तरीके से यूज्ड होता है। सो द टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हाई कार्बन स्टील विच इज़ इंक्लूड्स द लॉक ऑफ द वॉशर्स। लॉक वॉशर्स को जो है हम लोग बना सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द वाल्व स्प्रिंग्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सम काइंड ऑफ द व्रिंचेस, हम लोग इससे जो है वो व्रिंचेस जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देन द कटिंग टूल्स,
We can also manufacturing the cutting tools with the help of this high carbon steels, क्योंकि कटिंग टूल्स के अंदर आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके का स्टील्स चाहिए, राइट। आपने अभी भी काफ़ी सारे जो D2D वाले स्टूडेंट्स हैं उसने सुना ही होगा, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सुना ही होगा कि आपने शायद सेकेंड सेमेस्टर के अंदर वर्कशॉप में आप लोग गए होंगे और आपने लेथ ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो कुछ जॉब मैन्युफैक्चरिंग किए होंगे। तो उसके दौरान जो है ये चीज़ आपको पता चली होगी कि जो कटिंग टूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो कटिंग टूल्स का बेसिक मटेरियल्स जो है वो हाई कार्बन स्टील हो सकता है, कार्बाइड टूल हो सकता है, राइट, सिरेमिक टूल्स हो सकते हैं। तो ये जो है वो जो कटिंग टूल जो यूज़ होते हैं, तो बेसिकली तो कटिंग टूल्स जो है वो हाई कार्बन स्टील से, अगर स्टील की बात करें तो कटिंग टूल के लिए हाई कार्बन स्टील जो है वो बेसिकली ज़्यादा तौर पे यूज़ होता है। देन द डाइज, then the shearing knives, then the anvils, then the chisels, hammers, milling cutters, यानी ये भी एक तरीके का टूल ही है जो यूज़ होता है। then the tappers which is also one kind of the tools, then the razors, hexoblades के अंदर भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ज़्यादा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग उसका 90% मैन्युफैक्चरिंग जो हेक्सोब्लेड्स का जो है वो हाई कार्बन स्टील से होता है। देन द पिस्टन रिंग्स एंड द गेजेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दी हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील के पास भी जो है द वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे मीडियम कार्बन स्टील के पास जो है वो वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस थी, इसी तरीके से हाई कार्बन स्टील के पास ज़्यादा स्ट्रेंथन, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उस एरिया की जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है, राइट। सो दिस आर द सम काइंड ऑफ द फिगर्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द हाई कार्बन स्टील। सो हाई कार्बन स्टील्स के अंदर हम लोग बात करें तो लॉक वॉशर्स है, वाल स्प्रिंग्स है, व्रिंचेस हैं, ये जो है वो सारे हाई कार्बन स्टील से जो है वो बनाए जा सकते हैं। सो यहाँ पे अब एक और पॉइंट हमें जो डिस्कस करने का अभी मौका मिलेगा वो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द impurities elements on the properties of the plain carbon steel। अगर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही वही था, राइट। आज का हमारा जो टॉपिक था विच इज़ द बेसिक कंस्टिट्यूशंस बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ basic constitutes of the plain carbon steel, microstructures of the plain carbon steel and the basic properties of the plain carbon steel। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं विच इज़ द इफेक्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज़, राइट। प्लेन कार्बन स्टील के अंदर जो है वो क्या इम्प्यूरिटीज़ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो देर आर द 4 कॉमन इम्प्यूरिटीज़ एलिमेंट्स इन द प्लेन कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली प्लेन कार्बन स्टील के अंदर ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो इम्प्यूरिटीज़ एलिमेंट्स हैं जो प्लेन कार्बन स्टील के अंदर होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा है, विच इज़ दी सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर्स एंड फॉस्फेट्स। दिस आर द 4 बेसिक impurities elements which are present in the plain carbon steels and they are affect positively or negatively to the properties of the प्लेन कार्बन स्टील। ये जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील्स प्राइमरीली विच इज़ डिपेंड्स अपॉन द कार्बन कंटेंट। जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है प्लेन कार्बन स्टील, तो बेसिकली प्लेन कार्बन स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो किसके बेसिकली उसके अंदर, क्योंकि हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इसके अंदर जो बेसिक जो मेजर अमाउंट है विच इज़ द 1.5% ऑफ द कार्बन कंटेंट, राइट। टोटल अमाउंट का 1.5% तक जो है उसके अंदर कार्बन, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी तौर पे भी जो है उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंसेस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसेस रहेगा वो किस चीज़ का हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस जो है वो उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ द कार्बन जो है वो प्रेजेंस है, वो जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। एंड
टू अ लार्ज एक्सटेंट अपॉन दिस 4 इम्प्योरिटीज एलिमेंट, और उसके बाद जो है द लार्ज एक्सटेंट तक जो है इसके अंदर ये जो 4 इम्प्योरिटीज़ है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, मैंगनीज हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये जो 4 जो है इसके जो स्मॉल अमाउंट इसकी जो प्रेजेंस रहती है वो उसकी प्लेन कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। वो इन्फ्लुएंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि सल्फर और फॉस्फोरस है, तो पॉजिटिव इसका जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो जो है उसकी मशीनबिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए जो है वो सल्फर और उसके जो फॉस्फोरस है वो काफ़ी बड़ा जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंगनीज, जैसे सिलिकॉन तो है, वो सिलिकॉन की जो है वो उसके अंदर जो है वो एक तरीके से सॉफ्टनेस जो है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंगनीज है तो मैंगनीज एक तरीके से उसके अंदर जो है वो हार्डनेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो मैंगनीज के स्मॉल अमाउंट ऑफ द परसेंटेज अगर इन एज ए फॉर्म ऑफ द इम्प्योरिटीज एलिमेंट्स अगर प्रेजेंस हो गए तो वो इस तरीके से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विच इज़ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील के अंदर जो है वो क्या लिमिटेशंस हो सकती है, तो बेसिकली प्लेन कार्बन स्टील के अंदर अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द 700 मेगापास्कल्स विदाउट द सब्सटेंशियल लॉस इन द डक्टिलिटीज एंड द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जो अगर प्लेन कार्बन स्टील की हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, तो प्लेन कार्बन स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ जो है कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 700 मेगापास्कल्स से जो है वो ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती विदाउट द सब्सटेंशियल लॉस इन दी। अगर हम लोग डक्टिलिटी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करें, तभी इसकी ज़्यादा जो है वो लिमिट बढ़ सकते। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दिस टू थिंग्स वी कैन नॉट इंक्रीज दी strength of the plain carbon steel. They have a poor impact strength at the low temperature. इसके अंदर बहुत जो है वो ज़्यादा तरीके से poor impact strength है at the low temperature. लोअर टेम्परेचर के अंदर जो है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ काफ़ी पुअर हो सकती है। यानी आप लो टेम्परेचर के ऊपर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर लोड अप्लाई करेंगे या फिर सडन लोड अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देन देर आर द पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस एंड दी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। यानी इसके अंदर जो है वो कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही वो वेट एटमॉस्फेयर में या फिर वाटर कंटेंट में आएगा, उसका कंटामिनेशन होगा, तो इसके अंदर कोरोजन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे कोई इम्प्योरिटीज़ एलिमेंट्स नहीं है या फिर हेल्पिंग एलिमेंट्स नहीं हैं जो इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर कार्बाइड जो है वो प्रेजेंस है, तो कार्बाइड जो है वो एटमॉस्फेरिक के ऑक्सीजन के साथ कॉन्टामिनेशंस होके, राइट, कॉन्टामिनेट होके वो जो है वो ट्राई कर सकता है इसके अंदर ऑक्साइड फॉर्मेशंस की, और इसके लिए जो है वो ऑक्सीडेशंस लेयर जो है उसकी टॉप सरफेस के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीडेशंस, राइट, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ द लॉस ऑफ द मटेरियल्स विच इज हैपन्स विद द ऑक्सीडेशंस resistance, right. The properties which is do not remain uniforms for a larger thickness of the plain carbon steel. अगर हम लोग ज़्यादा थिकनेस की यूज़ करके प्लेन कार्बन स्टील को यूज़ कर रहे हैं, राइट, प्लेन कार्बन स्टील के अगर आपकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस है तो उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे चांसेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक तरीके से इसके अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ बेसिकली नहीं रहती है, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी तौर पे जो है वो ज़्यादा तौर पे उसको वेरी होते हुए जो भी हमने ऑब्जर्व किया है।
So this is the some kind of the biggest limitations of that. When you are using the higher thickness of the plain carbon steel, there is some kind of the chances that your properties will not remain stable or will not remains uniforms during the higher thickness applications. Then the last limitations, which is they are not deep hardenable. ये जो है वो ज़्यादा डीप हार्डनेबल मटेरियल्स नहीं हैं, राइट। तो उसके पास एक तौर पे एक ऐसा चीज़ में बोल सकते, ऐसी कोई ज़्यादा हाईएस्ट हार्डनेस्ट एबिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिससे एक तरीके से वो शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी एनहांस कर सके. So these are the certain kind of the limitations which is presence in the plain carbon steel. So in today's lecture we try to understand about the basic things about the plain carbon steel. We also learns the basic things, basic constituents of the plain carbon steel, then the classifications of the plain carbon steel. Then in the classifications of the plain carbon steel, the low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel, we try to understand with the microstructures and its applications point of view and how it is react with the heat treatment processes. Then we also show some applications of that all three kind of the steels. Then after that points we also learns about the how that impurities elements which is affects the properties of the plain carbon steel, and at the last we also learns about the limitations of the plain carbon steel. So this is all about the today's lecture. I hope you all are understands properly with the contents of the plain carbon steel. In the next series of the lectures we also try to learn about the basic things about the wrought iron, different kind of the iron categories, right? So this is all about the today's lecture. You all have to write your enrollment numbers into the comment sections. If you have certain kind of the queries, your questions, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your questions and queries in the next series of the lectures. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.